What if I told you that Sudha was neither a hero or nor a villain? She was just one of the most human character that is there in Musafir Cafe. She was divided into multiple viewers and multiple, you can say, thoughts about Sudha. कि सुधा वॉज वन ऑफ द पर्सन हु वॉज वेरी वेरी सेल्फिश. कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि सुधा वॉज वन ऑफ द पर्सन जो अपने आप को बस प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, या शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड हर करियर. सो hey guys, welcome back to my channel Annie's Live Vlog. So today we'll find out, was Sudha a villain or was Sudha a hero in Musafir Cafe? We are talking about the most debatable character of Musafir Cafe, so it might contain a lot of spoilers as well. So if you see, initially Sudha was someone, or you can say Sudha came across as someone who needs or who is searching for love, stability and a meaningful life. But and that's what makes her, you can say, character very interesting. But if you see that Sudha is someone who don't know what she wants from her life, उसको नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है. She is just someone, like, if you see that she was not even sure that she want to go to Mumbai or not. She was not sure if she want to get married to Chandar or not. Like, she was clear that she want to be with Chandar, but she's like, I don't want to be married with Chandar. So she was a character which was very very confusing. She is someone who used to be very distant with the people she is loving, right? So आप कह सकते हो कि सुधा was one of those character जिसको जो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रही है इन दी होल सीरीज. ठीक है, तो बहुत व्यूअर्स के लिए इट इज समथिंग विच इज वेरी, यू कैन से, फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? So that is one of the, you can say, thought about Sudha as a character. If we look deeper, was Sudha intentionally hurting someone? क्या उसको ऐसा intention था कि उसको चंदर को hurt करना है, और she was just trying to fight with her own expectations, with her own struggles and with her own fear of amendment. So ये सारी चीज़ें तो शायद वो खुद के साथ में ही fight कर रही थी. So that's the, I would say, beautiful part of Musafir Cafe that left us thinking that what was Sudha all about. अगर आप प्रैक्टिकली देखो, अगर आप किसी भी विलन के बारे में बात कर रहे हो, राइट? सो हर विलन का एक गोल होता है दैट ही really wants to hurt that person intentionally, but Sudha वो चीज़ नहीं कर रही थी. Sudha was doing it in, अब जो भी डिसीजन सुधा ने लिए, चाहे वो इम्पल्सिव होकर लिए, चाहे वो इमोशनल होकर डिसीजंस लिए, बट ऑल ऑफ दोज डिसीजंस हैड कंसिक्वेंसेस, बिकॉज एनी हाउ एज अ ह्यूमन वी ऑल डू मिस्टेक्स. हमको नहीं पता होता है, हम भी कई बार वी ऑल आर इन दैट सिचुएशन कि हम वो चीज़ कर देते हैं बिना सोचे समझे, एंड देन वी रियलाइज इट लेटर ऑन, मे बी आफ्टर 3, 4, 5 years एज वेल, कि यार वो चीज़ जो मैंने ऐसी करी थी वो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी. So that is something which makes Sudha's character one of the most human character, or one of the most relatable character of Musafir Cafe. And अगर आप देखोगे, मतलब जो लास्ट एपिसोड्स में, अगर मतलब जैसे कुछ लोगों का ये था कि सुधा वापस ही क्यों है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी सुधा हैव एनी हाउ रियलाइज्ड दैट उस टाइम पे जो डिसीजन उसने लिया वो बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया. शायद वो थोड़ा टाइम रुक सकती थी, शायद अगर वो थोड़ा सा कूल माइंड से सोचती, माइट बी अ पॉसिबिलिटी चंदर एंड सुधा बोथ हैव केम अप with you can say something in between, जो दोनों के लिए, दोनों के करियर के लिए, दोनों के ड्रीम्स के लिए कहीं ना कहीं वो एक बीच पॉइंट पे आ जाते. बट obviously as Sudha is a character which is very impulsive, she took a impulsive decision, and some of the fans do disagree with Sudha's, you can say, decisions, because anyhow, because of Sudha's decision, it anyhow caused pain and she should be accountable for it, and which is fine, because anyhow if you make any decisions, if you do any mistakes, definitely you should be very accountable of that. So
बिकॉज इनिशियली अगर आप पूरा सीरीज शुरू करोगे, मतलब इनिशियली इन दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एपिसोड, सुधा वॉज जस्ट लिविंग हर लाइफ, सुधा वॉज फ्लॉलेस, सुधा वॉज जस्ट डूइंग वॉट शी रियली वॉन्ट टू डू बिना किसी सेकेंड थाट के. सो एनी हाउ एवरी वन, अगर आप किसी भी पर्सन को देखोगे, स्पेशली अ मेल पर्सन, माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट सुधा वॉज समवन जो आपको फर्स्ट गो में पसंद आएगी, राइट, बट इम्पल्सिवली अगर यू कैन से कॉन्ट्रडिक्टरी अगर आप देखेंगे दैट सुधा सबको तब तक पसंद आती है जब तक सुधा इज डूइंग एवरीथिंग एज पर यू, बट जैसे सुधा का अपने ओपिनियंस होते हैं, लाइक शी वॉज हैविंग she was having her own opinions since the starting itself, but when she chose herself, कि भाई मुझे मुंबई जाना है, मुझे अपना करियर बनाना है, एंड एनी हाउ इफ यू सी दैट वट एवर सुधा हैज डन, आज अगर चंदर का कैफे है, दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ सुधा. बिकॉज अगर सुधा उस टाइम पे रिजिड डिसीजन नहीं लेती, माइट बी अ पॉसिबिलिटी शायद चंदर कहीं पे अभी भी डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहा होता. सो एनी हाउ सुधा वॉज वन ऑफ दी आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन चंदर की लाइफ में, जिसकी वजह से उसका ड्रीम फुलफिल हुआ है. सो सुधा वॉज वन ऑफ दोज कैरेक्टर जिसको अपन सोच ही नहीं सकते दैट सुधा वॉज अ विलन और सुधा वॉज अ हीरो, राइट. सो नाउ इट्स योर टर्न. व्हाट डू यू गाइज थिंक, दैट सुधा was a villain or Sudha was a hero? As per you, what do you guys think about Musafir Cafe? Do let me know in the comment section. So thank you. Bye bye.